अभी तो हाँ, अभी स्टार्ट हो रहा है शेरून। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। मेरे को तो आपका पीपीटी नहीं दिख रहा है। पीपीटी नहीं दिख रहा है यार। नहीं मैम, अभी स्टार्ट हुआ है स्क्रीन शेयरिंग। So very हाँ, good. थैंक यू। So thank you. So your Anmol is there, Dr. JP is there. Oh, welcome, 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 welcome. Anmol, I was not expecting you today. नहीं, मामा इज लेट, तो जब तक वो नहीं आते मैंने कहा मैं क्लास में अपनी अटेंडेंस लगा दूं। Good, good. मामा का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही सॉरी बट आई हैव टू डिस्कनेक्ट। I can understand that way कि आज का चैप्टर भी वैसे छोटा सा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, but it is a very important chapter that we have today. Great. So let us start. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. Thank you, God. Thank you, universe. Let us bless all the patients in all the hospitals. Let us bless all the doctors, staff, nurses, and we sprinkle magic dust to each and every hospital so that each patient is able to come out of it, We are praying for their well-being. Let us sprinkle magic dust. While you're sprinkling, just keep saying thank you, thank you, thank you, God, for blessing these patients, Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me such a beautiful day. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me these beautiful moments. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me this beautiful magical session. And I'm getting miracles day by day. Magic is happening in my life every moment, every time, in every situation where I am in. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful parents. I love them and they love me unconditionally. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me such amazing siblings. My brother, my sister. Today is a special day that I can give them lots of gratitude. Let's think of all the brothers that we have. Let us show them gratitude that because of them we are completely safe, and brothers can think of their sisters, give them lots and lots of gratitude to them, that because of them their life is really alive and colorful. Let's pray for all the brothers and sisters. सिस्टर्स की हर गलती को माफ कर दो, ब्रदर की हर गलती को माफ कर दो। सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का, उनको सपोर्ट करने का प्रॉमिस ले लो, whether they are with you or they are not with you, just keep blessing them. उसकी कोई भी गलती हो उसको माफ कर दो. Today is the special day. और हर दिन एक टाइम होता है, एक फेज होता है, एक ग्रह होते हैं, एक नक्षत्र होते हैं. So today if we forgive them, that will be a blessing to you only. You are getting free from all those karmas and all those things. It's such a wonderful day today we have. We got the opportunity to forgive them. Let's forgive each and every whatever they have done. Let's forgive them. And just say, I love you. I love you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me such wonderful brother, such wonderful sister. Thank you so much. I'm so blessed to have you in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me a healthy life, healthy cells, healthy body, healthy systems. I'm completely fit, energetic, active, and strong. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for my failures. I'm learning day by day, moment by moment. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you so much. Blessings to all. Hey. Hello, ma'am. Anji.
मैम मैं ना कुछ शेयर करना चाह रही हूँ आज। प्लीज कम ऑन। एक्चुअली मैं और मेरी एक बड़ी सिस्टर है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मेरे से 9-10 साल बड़े हैं। हमारे कोई ब्रदर नहीं है। जैसे मेरे सिस्टर मेरे से बड़े हैं तो आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड पूरी हमारी पूरी फैमिली से, मतलब कि तो जैसे मेरे कजन ब्रदर्स हैं वो इतने हमारे से बड़े हैं कि उनके आगे बच्चे भी मैरिड हैं, वो भी हमसे बड़े बड़े हैं सारे। तो पिछले दो आफ्टर माय फादर्स डेथ ना थोड़ा सा फैमिली में हो गया कि अब कोई, आपको पता है कि कोई सीनियर बंदा नहीं है, ये वो सारे अपने अपने उसमें हो गए। तो पिछले 2-3 राखी से हमारे साथ ऐसे हो रहा था कि जैसे कुछ हमारे कजन ब्रदर्स हैं, अब हम नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ द मदर्स हेल्थ है ना, तो हम भेज देते थे। या जैसे होता था कि दीदी अगर वहां पे किसी एक कजन के घर गई है, वहां पे ड्रॉप कराई कि आप प्लीज आगे सबको पहुंचा दो कि मैंने वापस जाना जल्दी, ऐसे होता था। तो इन चीजों के साथ दूसरे कई कजन्स में ना काफी वो हो गया कि नहीं वो उनके घर आते हैं, वो नाराज रहने लग गए जैसे दीदी से या ऐसे कैसे। तो अब राखी के दिन में तो कल मेरी सिस्टर काफी परेशान थी, इतना वो सारा दिन इतनी परेशान सारा कुछ। तो मैंने उसको बड़ा समझाया। आई वॉज कूल, वेरी कूल। मेरे साथ भी यही चीजें हो रही थी तो बट आई वॉज कूल। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उनका गुस्सा जैसे उन्होंने बोलना है वो उनकी नेचर है, तो अपना मन परेशान मत करो कि आप अपना करो अपना। अब इतना अच्छा त्योहार आ रहा है, सारा अपने फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपनी तबीयत पर ध्यान दो, सारा कुछ। क्योंकि वो ज्यादा सोच सोच के ना अपनी तबीयत बहुत खराब कर लेती है। तो बहुत रोई वो कल सारा दिन कि ऐसे कि किसी ने फोन नहीं किया कि राखी पे कि आ जाओ या कुछ ऐसे, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे। चलो, तो आज पता नहीं क्या हुआ। आज मैंने उसको एक मैसेज किया कि मैं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट करते हैं। हर अगर मैं किसी चीज पे परेशान हूँ कुछ हूँ, यू आर ऑलवेज देयर। और जिया जी ऑलवेज देयर। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और की जरूरत भी है। वेरी ट्रू। तो सिर्फ आज से अगर मैं किसी को अगर रक्षाबंधन विश करना चाहूंगी तो इट्स ओनली यू एंड जिया जी। और और अगर आपको बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, आप मेरे को कभी भी राखी बांधो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा दिन पे ही बांधनी है, कभी भी बांधो। मैं आपका भाई हूँ, आपको कभी भी जरूरत हो आई एम ऑलवेज देयर मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए हमेशा खड़े हो। तो पहली बार इतना वो खुश हुई और उसने मेरे को इतने उससे प्यार से वो सारा मैसेज भेजा था। तो उसको थोड़ा सा अपनी उसकी हालत उसकी थोड़ी ठीक हुई, थोड़ा उसको फील हुआ, तो मतलब कि खुश फील हुई ना, उसके बाद खुश फील करना शुरू हो गई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा किसी चीज से परेशान मत हो, सिर्फ तेरे को फर्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा अभी। तो अभी तेरी फैमिली को फर्क पड़ रहा है क्योंकि तू परेशान हो रही है, तू तेरी तबीयत खराब होगी। तो हम दोनों अगर हम खड़े हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, तो हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है। मैंने उसको ऐसे समझाया कि को अगर भाई की जरूरत है तो मैं हूँ, मेरे को हमेशा जरूरत पड़ती है तो यू आर ऑलवेज देयर। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा भाई तो तू है ही है, पर तेरे लिए मैं भी तेरा भाई हूँ ना। तो उसने कहा, कहती जब मुझे तेरी जरूरत होती है तू हमेशा सपोर्ट करती है। तो मैंने कहा बस फिर परेशान मत हो। तो उसके बाद फिर उसका मूड ठीक हो गया सारा, वो बिल्कुल अपना अच्छा हो गई, ठीक हो गई। और फिर उसके बाद जस ने उसके बेटे के लिए राखी वगैरह भेजी थी, तो उन्होंने पूरा अच्छी तरह से वो राखी वाला किया। Yes, yeah, this is so nice, so nice here. You actually did a bhaiyo wala kaam, you know. Inspired. मैं आज कल से इतनी ज्यादा परेशान थी उसको देख के कि उसने इतना रो रो के अपनी बुरी हालत की हुई थी ना, सारा कुछ किया हुआ, क्योंकि फैमिलीज में होती रहती हैं ऐसी चीजें। बट अगर हम ये लेके बैठ जाएंगे तो फिर अब देखो इस घर को कौन देखेगा। सेशन के बाद you know you the relationship definition has actually altered. मैं बिल्कुल मैम। काफी कुछ ऐसे थी बट देन नाउ तो ऑल टुगेदर ऑल ज्यादा वो कैसे कि रिलेशनशिप कोई जरूरी नहीं है कोई आपके पास ही हो हर चीज करने के लिए. It is you who can do them wherever you are. तो कोई जरूरी नहीं है किसी चीज की जरूरत पड़े आपको कुछ करने की जरूरत है ना, ऐसा नहीं है. You can do for anybody any moment of time. The only thing is that intention has to be there. बिल्कुल मैम। कुछ भी है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, हम लोग मिलके अपना करते रहते हैं. मतलब वो भी जब परेशानी सबसे पहले से
उसको इतना पता है, मैंने दीदी को कॉल कर लिया तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। और मैम पता है ये आइडिया मुझे कब आया, जब मैंने आपकी और आपकी सिस्टर की फोटो देखी स्टेटस पे। कमाल हो मेरे को तब आया ये, एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि उसको किसकी जरूरत है या मुझे किसकी, जब हम दोनों हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वो दोनों मुझे इतनी हर चीज में ऐसे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे लिए हमेशा खड़े हैं। फिर मुझे अगर उन्हें कुछ लगता है कि मेरे लिए नहीं ठीक, वो मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं हम तेरे साथ हैं, ये तेरे लिए नहीं ठीक है। हर चीज में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उससे बड़ी और बात है, you don't need any relation to be named off. It is like they are already protecting you, supporting you in every way. So it is बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। इसीलिए मतलब चाहे फ्रेंड्स हो चाहे ब्रदर सिस्टर, कोई जरूरी नहीं है कि जिनको हम राखी बांधते हैं दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। इट्स लाइक द फीलिंग दैट यू हैव। सिमिलरली मेरी छोटी सिस्टर का और मेरा हमेशा से ऐसे, वो थोड़े से परेशान होती है ना, उसका उसका कभी रात को 3 बजे ऐसे कॉल आ जाता है तो मैं थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हूँ कि यार बच्चे ठीक हो, सब कुछ मुझे थोड़ा सा हो जाता है। हाँ बट जी। उसको ये पता है उसने अगर मेरे को प्रॉब्लम बोल दी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, तो उसके लिए तो मैं एक तरह की मम्मी पापा ही हूँ। बिल्कुल मैम, ऐसी होता है। बहुत ज्यादा है मेरे साथ। और मैं परेशान होती हूँ तो मैं पहले अपने आप में ही अपने आप को ना ठीक कर लेती हूँ। मुझे अपने अंदर, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग दैट वे। आई एम नॉट इमोशनल, ठीक है इमोशनल हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं इमोशनल होंगी, रोऊंगी भी, एंड देन इमीडिएटली आई कम आउट ऑफ इट। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों माय फादर वॉइस इज देयर, राजी आई एम देयर, मतलब ही इज देयर। तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे को रात को उसको मैंने दवाई दे के गई, सब कुछ अच्छा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसको हीलिंग कर रही थी, मैं अपनी प्राणिक हीलिंग कर रही थी। माय फादर वाज अ वेरी गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। तो रात को सपने में आए मेरे को पापा, पापा कहते तूने वो दवाई क्यों नहीं दी उसको, वो देना उसको तो ठीक हो जाएगा। मतलब ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, आई डोंट नो व्हाई। मतलब माय फादर इज ऑलवेज देयर, आई कैन सी दैट। आज भी मैं बड़े भाई को राखी बांधने गई जब, तो जैसे ही मैं गेट से घुस रही थी, गेट पे बेल बजाई मैंने, गेट से घुस रही थी, एक काऊ 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 नॉन स्टॉप मेरे कान के पास जोर से काऊ 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 काऊ, मतलब क्रो था मतलब वो। तो मैं ढूंढ रही, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मतलब नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्टॉपेज ही वाज ऑन 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 ऑन। मैंने कहा पता नहीं क्यों, मैंने फिर उसकी तरफ देखा, फिर वो चुप हो गया, फिर दोबारा काऊ काऊ काऊ। सो दैट इज द इंडिकेशन कि मेरे को, फिर मुझे ऐसे लगा एज इफ माय फादर इज देयर एंड ही इज सेइंग कि ब्लेसिंग्स टू पापा, नीतू से मिलने जा रही है। मैं हाँ जी, तो या तो मेरी प्रेडिक्शन है या जो भी है, बट दैट इंटेंशन इज देयर, माय फादर हैज ब्लेस्ड मी दैट यू आर विद योर ब्रदर, यू नो दैट। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और मैम एक सबसे अच्छी बात, उसने पता है मेरे को क्या बोला, तू बड़ी कब हो गई? और मेरे को सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं कल तेजस्वी से भी ये बात शेयर की थी कि आफ्टर दिस ऑल मैजिकल सेशंस मैंने जो इतना कुछ सीखा है ना इसमें, आई हैव अ फ्रेंड जो सेम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स से ना काफी ज्यादा अपसेट है, काफी ज्यादा गुजर रहा है। तो वी हैड अ फाइट इन जनवरी, तो उसके बाद मैं उससे बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दिया था। तो उसका बीच में कई बार कॉल आया, ही सेड सॉरी ये वो, बट नहीं, मैंने कहा नहीं करनी है मुझे। कि उसने कुछ ऐसे बोला था तो मैंने एकदम से कट ऑफ कर दिया। तो परसों रात को मुझे उसका मैसेज आया है कि प्लीज इट्स वेरी अर्जेंट, आई नीड टू टॉक टू यू। तो आई डोंट नो, आफ्टर 7 months अगर मैंने कोई मेरे के दिमाग में उसके लिए गुस्सा नहीं था, कुछ नहीं था, आई वॉज वेरी काम, मैंने बात की। और आप मानोगे, मैंने ना जो अब तक सीखा मैंने उसको सारा समझाया, और ही वॉज शॉक्ड कि तेरे को क्या हो गया, तेरी तो काया ही पलट है भाई, तेरे को हो क्या गया, ये वो मानवी तो है ही नहीं। कहता तू वो बातें कर रही है जो मेरे पापा मुझे समझाते हैं। तो मैंने कहा अगर 2 बंदे हम तेरे को समझा रहे हैं तो दैट मीन्स इट्स टाइम कि तू आप अब अपने पे ध्यान दो इन सारी चीजों को छोड़ के। तो वो एकदम से हैरान कि ये कैसे हो गया सारा कुछ। तो मैंने उसे बताया हमारे सेशन के बारे में कि यू शुड ऑल्सो ज्वाइन। तो बट वो थोड़ा उसको टाइमिंग का इशू आ रहा है, तो मैंने कहा everybody is there or I'm lost, because she's No, lost. I'm there. She's lost. No, I'm also there. Okay, so great. So it was a wonderful. hello. Yes, Manvi, you were gone. Yes, ma'am. थोड़ी सी नेटवर्क इशू।
But I must tell you, when we are discussing all these things, it is not boring for each one of you. It is that it is a learning for you, everyone, you know, because आपकी life में भी same ऐसा कुछ हो रहा है. Just make sure that you take actions and forgive people, and you know, enhance your relationships, you know, that way, because relationships are very important. And सबसे ज़्यादा impact आपकी life में relationships से होता है, whether it is a business, whether it is in money, whether it is health. सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे होता है. अब अगर आपके रिलेशनशिप आपके फ्रेंड हो गया, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, आपके पेरेंट्स हो गए, मतलब अगर आपका कंप्लीशन नहीं है तो दैट इम्पैक्ट्स योर वर्क, यू नो, आपका बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. इफ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू रियली वांट टू डू, बिकॉज़ देन योर वाइब्रेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई. थैंक यू मानवी फॉर शेयरिंग. मोनिका, इस बात पे मुझे एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट याद है. थैंक यू. एक बड़ी अच्छी चीज याद आ गई कि यू नो, मैं हमेशा ये मैंने लैंडमार्क को जाके समझा था, ये रिलेशनशिप के पीछे पड़े रहते हैं. मैंने क्या पागल, मतलब चिपको में लगता था. फिर मैंने समझा बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन दिस यूनिवर्स देयर इज अ रिलेशनशिप, यू नो. बिहाइंड तो कुछ भी कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ सी आप कितना ऑटोमेट कर लो, कुछ भी कर लो दुनिया में, फाइनली एंड ऑफ द डे ना यू विल नीड टू, अगर आपके साथ कोई दूसरा ह्यूमन आपके साथ खड़ा है ना, किसी भी डोमेन में, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे आपको कोई भी डोमेन हो, कैरियर हो या कुछ भी हो, है ना, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग मैच. एब्सोल्युटली. ऐसे ही नहीं कहते 1 और 1 11 होते हैं, ऐसे ही नहीं कहते. तो हर चीज के पीछे, मुझे हर चीज के पीछे जाके देखोगे ना तो एक इंसान ही मिलेगा. बिल्कुल 100% है. किसी के आगे बढ़ने का तरीका, Totally agreed. it's absolutely only the human beings, you know, because it's a human design. You get supported. तुम आप खड़े हो, आपके साथ कोई आपका अपना खड़ा हो ना, वो चाहे कुछ ना बोले but support है. That your mind takes the message कि he's there for you, he's there for you. I want to share something. मैं इस बात पे, सॉरी यार, इस बात पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा. मैं जब यूके में पढ़ रहा था तो एंड में देयर वाज अ डिसर्टेशन, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. उस डिसर्टेशन में ना माइन वाज द बिगेस्ट डिसर्टेशन एवर. साइबर क्राइम की हेड भी और इसके हेड भी उसके हेड भी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब मिक्सअप हो गए थे. तो एक पॉइंट इन टाइम आया था, आई क्रैक्ड आउट. आई हैड जस्ट टोल्ड कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, और वो लोग भी कह रहे, यू नो, दे कीप प्रेशराइजिंग यू सो दैट टू टेक यू टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल. ठीक है, मतलब मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ. मैं एक टाइम पे ना मैं क्रैक सा हो गया था. क्रैक सा मतलब मैंने कहा भाई मैं ऑन नहीं कर सकता, और उनको मुझे ऐसा लग रहा था दे वर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई वाज डूइंग. ठीक है, सो माय डैड एंड मॉम इवेंचुअली उस टाइम पीरियड में ही आए थे, कुछ दिन पहले ही मुझसे मिल के गए थे वहां लैंकेस्टर में. ठीक है, और हम लोग घूमे फिरे भी थे, जो भी है. फिर उसके बाद वो चले गए. तो मैंने डैड को एक दिन फोन करके बोला, मैंने कहा बॉस ये मुझसे नहीं हो रहा है. ठीक है, मेरा डैड ने मुझे क्या बोला तुझे पता है? बोले कोई बात नहीं, तेरे पास बीटेक की डिग्री है, तेरे पास कुछ नहीं है, एमएस नहीं होगा ना, नहीं होगा तो ठीक है, तू वापस आ जा इंडिया. आप बोल कब आना है तेरे को वापस, ये बता दे. ठीक है, आप बिलीव करोगे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, ना मैं वापस गया ना मैंने कुछ किया. उनका सिर्फ इतना साथ कि कब आना वापस, तू वापस फ्लाइट पकड़ और तू वापस आ जा इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं होगी तो नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा हो गई नहीं ना, फेल होगा ना, ठीक है आ जा. भाई इतना बोलना था. आप बिलीव कर सकते हो कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे नंबर से और बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन से क्रॉस करके मैं डिग्री लेके वापस आया हूँ. ये कि सपोर्ट जो आप कह रहे थे ना, कि चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे जो करना है कर. ठीक है, इतना उन्होंने फ्रीडम दे दी ना, उसके बाद तो समझ रहे हो मेरे अपना इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने कहा यार जैसा होगा कर दे, और इट वेंट इवेंचुअली वेरी हाई. Totally agreed with her. Ear to listen, that's it. अब हमारे इतने सारे स्कूल्स हैं, उस पर बहुत सारे कई पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आती है, कुछ आता है, यू नो. अगर आगे आप, मैं टीचर्स को भी एक बार यही समझाती हूँ, when somebody has a complaint, just listen to them carefully, that's it. The moment you start defending yourself, वो aggressive और होते जाते हैं. इधर आप डिफेंड करते जाओगे, अगर आप, even in fact in our life also, when somebody is in front of you, if you just give your ear to her or to that person, you know, उसकी पूरी बात सुन लो, उसका 80% तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई आफ्टर लिसनिंग. वो लिसनिंग देना बहुत जरूरी है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग.
वो सुनते हैं जवाब देने के लिए। यहाँ सुनने का मतलब होता है सुनना, आपने उसको अटेंशन दी है, अपने आप को, अपने आप की प्रेजेंस दी है, मैं तेरे को बैठा हूँ सुनने के लिए। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से अनमोल, विपिन सूरी जब अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता था, उन्होंने बताया कि हमारा रिलेशनशिप वाज रियली बैड, मतलब डिवोर्स जो था, कहते हैं मैं मतलब जब से मैं लैंडमार्क में आया, देन आई बेग्ड हर, लिटरली बेग्ड हर, आई रियली वांट टू मीट यू। शी नेवर वांटेड टू मीट, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, कहते नहीं, बट आई लिटरली बेग कि आई रियली वांट टू मीट। तो बड़ी मुश्किल से उसने बोला कि मेरे पास मेरा 15 मिनट है, मैं 15 मिनट देती। उसने 15 मिनट का टाइम दिया, पता नहीं कहाँ मैकडॉनल्ड्स या कहीं जाके मिले। विपिन कहता है कि मैं चुप बैठ रहा, वो 1 घंटा नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स 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 कंप्लेंट्स, शी वाज ऑन विदाउट uttering one word. I was just listening because I wanted to remove all those negativity from her mind. वो कितनी बड़ी बात है, और ये हम सब में से कोई बात नहीं समझते, because nobody wants to listen negative about our own self, you know, कभी भी नहीं होता। बट तब उसने बोला कि उसने 15 मिनट का टाइम लिया, एंड शी टुक 2.5 hours जब तक ये कंप्लेंट्स खत्म नहीं होगी। मैंने कहा आज तेरा दिन है, तू जितना बोल सकना है बोल। So that is the way, that is how the relationship works. हम अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते, अरे मैंने ऐसे नहीं किया, अरे मेरी ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों तरफ से होगा कुछ ना कुछ, तभी ताली बजती है। So that is why मोनिका विपिन, सॉरी बट बहुत सालों बाद एक और लड़का हुआ था अनमोल, जिसने अपने पिताजी को 2.5 घंटे सुना था, ये क्यों भूल जाते हो, और अपने बारे में ही सुना था, ऑफ कोर्स बारे में ही सुना। So this comes with that patience, you know, that gratitude that you gained what you created for yourself. Very true. एंड मैं एक चीज और बताऊं, जब मैं उसको ये सारा समझा रही थी ना इन चीजों के बारे में, तो ही वाज लाइक कि उसका भी डिवोर्स का केस चल रहा है, वो सारा कुछ। तो मुझे कहता तू कैसे सोच रही है ये वो कि यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। मैंने कहा आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद माय मदर एंड विद माय डॉटर, राइट, तो मुझे किसी और के साथ की जरूरत क्यों है अब। एंड वो he was shocked, he was really shocked। कहता तू कैसे सोच सकती है कि हमें लाइफ में है। मैंने कहा तेरे पास तेरे फादर हैं, तू अपना ध्यान नहीं रख रहा, तू अपनी परेशानियों में उलझ के तू इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, ये कर रहा है, वो तेरे को देख के परेशान हो रहा है, तू अपने आप को ठीक कर और उनको ठीक कर। देख तेरे को अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो वो इतना ज्यादा शॉक हो गया कि तेरे को हो क्या गया भाई। क्या तूने कहीं दुनिया को छोड़ने का इरादा तो नहीं कर लिया? मैम वो सीरियसली, मैं ना सीरियसली चाहती थी कि सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप देखो हमने जितने भी कुछ क्रिएट किया है, इट इज ऑल ग्रैटिट्यूड दैट वी हैव क्रिएटेड, एंड विद दिस ग्रैटिट्यूड ईच वन ऑफ यू, वेदर यू आर रेगुलर और नॉन रेगुलर, माइंड में रोज शुक्राना तो आता है ना, चाहे दिन में मैं कह रही हूँ 5 बार करो, आता है। और बिल्कुल you have become matured enough to understand। मैंने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे सबका मालूम है हर एक की लाइफ में रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं और 100% हुआ। And there is only one tool, that is gratitude, gratitude, gratitude. And सॉरी, इस बात पे एक और चीज मुझे विपिन वाली याद थी, तो मेरा अलग एक्सपीरियंस, ये वाला आपने बताया। अच्छा, मेरे को एक बार विपिन ने शेयर किया था, विपिन और ऋतु है ना, तो एक पॉइंट इन टाइम आया था जब उनकी रिलेशनशिप जो है वो मतलब ब्रेक होने पे या उस पे आ गई थी, ठीक है। एंड उन्होंने जो है, तो विपिन ने बेसिकली ले जाके बोले 5 घंटे हम दिल्ली के फ्लाईओवर के गाड़ी में बैठ के, क्योंकि इतना गुस्सा था, फ्लाईओवर में बैठ के चक्कर काटते रहे हैं, मतलब दिल्ली के 5 घंटे तक गाड़ी में। एंड गाड़ी में हम लेकिन बात करते रहे कंटिन्यूस। वो ऋतु कुछ बोल रही है, मतलब जो पूरा उसने सुनाया पहले पूरा, फिर मैंने अपने, तो बोले मैंने उसको सिर्फ विपिन ने बोला, मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी ऋतु को कि गेट इट, और आज तक वो डायलॉग नहीं भूला यार मैं, गेट इट क्लियर इन योर क्या बॉडी बोन एंड सेल्स दैट आई एम नॉट गोना लीव यू एवर। ऋतु का अपना एक फियर था फ्रॉम हर पास्ट रिलेशनशिप कि यू नो जो भी आता है वो छोड़ के चला जाता है, तो शी वाज डीलिंग विद दैट फियर इन दिस रिलेशनशिप एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या कुछ गैप्स हो गए थे, तो उसको वो डर बैठ गया था, एंड यू नो दैट इज व्हाई शी वाज डीलिंग विद व्हाटएवर। तो विपिन ने एंड में से उसको, विपिन ने शेयर किया था क्लास में कि एक चीज मैंने शेयर करी सिर्फ
कि अपने ब्लड बोन सेल्स में जहां तो डालना है ये डाल ले कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, as long as I am always going to be there for you. That he said that one single statement of mine, you know, that's obviously उसने फील किया होगा, उसने इमोशनली बोला होगा, जैसे भी वो उसने इट ऑल्टर्ड द होल कोर्स ऑफ माय रिलेशनशिप विद ऋतु। जो डेप्थ पहले नहीं थी ना, इसके बाद जो मेरी और ऋतु की रिलेशनशिप में डेप्थ आई है वो अलग ही लेवल आई है। दैट्स व्हाट ही कम्युनिकेट। क्लियर था ना वो माइंड। देखो आपके रिलेशनशिप्स में, आपके जिंदगी में जो भी काम हो, कुछ भी एपिसोड होते हैं ना, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट माइंड में रह जाता है। और आप किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कुछ, उस चीज का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके डर से हम बाकी काम उससे डर के करते हैं, यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उस डर से। तो वो जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, उसको हटाना बहुत जरूरी है टू लिव लाइफ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारा ILP की क्लास थी और विपिन को जब क्लास के बाद सारे खड़े हो जाते थे उसे क्वेश्चन पूछने, और विपिन ज्यादा नहीं बोलता किसी को, विपिन सिर्फ एक डायलॉग मारता है, और एक डायलॉग छक्के वाला होता है। हमेशा से ये बात होती थी। ये तो होता है। क्या, और ऋतु ने बोला मैं इतने बजे तक वेट करूंगी, एंड देन सी उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, हाँ लास्ट क्लास थी सर, हमारे सबकी लास्ट क्लास थी, तो आई वाज आल्सो कम्युनिकेटर ओवर देयर। तो अपने ILP से कंप्लीट हुआ, जो भी हुआ, 100 फ्लावर्स मुझे मिले थे, 100 फ्लावर्स विपिन को मिले थे, 100 फ्लावर्स हमारे जो भी कुछ 2-3 लोगों को स्पेशल एज वो मिले थे, तो हम भी फोटोग्राफ वगैरह खिंचाने में लगे हुए थे। जब विपिन बुके लेके पहुंचा, कहते मैं ना, अभी वो अंदर ही खड़ा के बोला था, मैं ये जब बुके ऋतु को जाके दूंगा ना, वो बड़ी खुश होगी। तो वो स्माइलिंग, यू नो, वो बाहर पहुंचा तो ऋतु थी नहीं, क्योंकि उसने जो टाइम दिया था विपिन तब तक नहीं पहुंचा था, तो पर ऋतु उसको छोड़ के चली गई। अब वो कह रहा है, अब उसने फोन किया, मैं यहाँ पहुंची हूँ, पहुंच रहा है तो यहाँ पहुंच जाओ, फिर ऋतु का फोन बंद, फिर पता नहीं किसके साथ लिफ्ट लेके, सी द वे, इन द सेंस, अगर इतनी सी बात पे 100% लड़का और लड़की में लड़ाई हो जाती है, बट दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्ड, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। फिर अगले दिन हमने पूछा था विपिन से, जब एक तो विपिन ने ये बोला था कि अगर वो मुझे, बिकॉज इट वाज हर वर्ड दैट शी लीव, तो आई रिस्पेक्ट दैट कि उसने उसको फॉलो किया, और मेरे को मेरी गलती थी, तो मेरे को वो एफर्ट करके उसके पास जाना था, नहीं तो अगर तू 5 मिनट वेट नहीं कर सकती थी तो कोई तक उसी बात पे बहस शुरू हो जाती, अगर नॉर्मल रिलेशनशिप होता तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज हस्बैंड एंड द वाइफ, पार्टनर की सबसे अच्छी बात होती है कि दोनों की वो अंडरस्टैंडिंग, अगर जो हस्बैंड जो एक्सपेक्ट कर रहा है और जो वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, इफ दे बोथ हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो फिर कहीं आपका कुछ नहीं जा सकता। डोंट वरी, मैं अपनी परफेक्ट सोल पार्टनर की लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। यतीश सर कह रहे थे कि मैं, ओके, so we did the grateful heart is a magnet of miracles, self love, please don't leave your self love, इसी को देख के प्लीज अपने आप को ही बोल दिया करो, I love myself, I love my heart, I love my body, I love my home, I love my mind, I love my little quirks, I love my sense of humor, I love my eyes, I love my family, I love to feel inspired, I love to inspire others, I love to feel vibrant, I love to meditate, I love to sleep, I love to drink water, I love to dance, I love to laugh, I love to create, I love my soul, I love me. Great. So कल का ये जो एक्सरसाइज थी, किसने किया, क्या हुआ, मैग्निफिसेंट आउटकम के साथ, एनीबडी डिड समथिंग, anybody would like to share on this? But it is a very good effective statement. Keep using in your blessings, keep using in your prayers, so you will see the things will be happening, the outcome will be same, you know. Okay, so now today's chapter is before your very eyes. This world, after all science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Will think of it. So आज का ये chapter है, who's going to read? Sunanda, are you ready? Yeah, I'm always ready. You have to only tell me to read. I'm ready to read. Thank you. I'm just opening the book
for you? I came today for reading only. Wow, that's nice. That is called magnificent outcome. Ah, superb. Sunanda has created miracles in her relationships. Wow, I really appreciate that, Sunanda. Yeah, thank you, Monica. Thank you, and thank you to you. It's your effort. It's all your effort. हम रास्ता दिखा सकते हैं, but efforts आपकी हैं. Guts आप में होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए, and you did that. सही बात है. पर मैम हर कोई इनकरेज नहीं करता जैसे आप करते हो. ये सिर्फ मेरे लिए. मेरा एक वो नहीं है. अगर कोई मेरे से कुछ शेयर करता है ना, मैं उसकी प्रॉब्लम में घुस जाती हूँ, पता नहीं क्यों. My habit. और मैं तब तक उसके लिए प्रेयर नहीं छोड़ती जब तक कि उसका अचीवमेंट नहीं हो जाता. That is, I don't know why it is. It's seriously, I'm really blessed कि आप मुझे मिले और हम सारे इस सेशन में हैं. आपने मेरे को इनकरेज किया सेशन में आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सिर्फ ये आपके एफर्ट्स हैं जो आपने मेरे को इतना इनकरेज किया कि नहीं तू आ. और मैं अपने आप में इतना चेंज देख रही हूँ. बुलाने के लिए वापस. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. Because I was really wanted you to come out of this situation. I had seen your situation, so I really wanted you to come out of it. That is why. मैम अब तो आपको मेरे में बहुत चेंज लग रहा होगा. 100%. I'm really proud of you. I'm telling you. I'm actually. क्या नहीं हो गई मैम. बड़ी हो गई. बड़ी हो गई. आज तो दिख गया बड़ी हो गई है. दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है. मानती आपने तो बहुत ही अच्छा एक्शन ले करो 100% इसमें. This is for sure. Thank you तेजस्विनी. Thank you so much. Yeah, welcome. She is my backbone. मेरा राइट हैंड है तेजस्विनी, जिसने मेरे को इतने चीजों में मेरे she is there to support me. डांट भी खाती है मेरे से, सब कुछ करती है. क्या करूं मैं? मैम अब रहने दो ना. नहीं है मेरा. मैम रहने दो ना अभी. अच्छा ठीक है, चलो. मैं नहीं कुछ बोल रही, मैंने सिर्फ बोला डांट तो खाती है तू रोज. नहीं बात में. ठीक है मैम, वो डांट भी हमारे अच्छे के लिए ही होती है ना समटाइम्स. ये बात जब समझ गया ना, अगर उसने मेरे से डांट खा ली, उसकी जिंदगी संवर गई. आई एम टेलिंग यू. ये बात सबको समझ नहीं आती. I know that. I still remember वो मैसेज जो आपने मेरे को बोला था, तू आ रही है कि मैं बैच से निकालूं तेरे को. मैं उसी मैसेज से डर गई थी. गुड. मतलब मैं यही तो बोला, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मेरी डांट की, और जिसको मिलती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है. ये बात पक्की है. सीरियसली मैम. देख लो मेरी लाइफ की, जिन आज तक वो कहते हैं मैम आपकी डांट की वजह से आज मैं ये कर रहा हूँ. दैट इज मुझे मैम, आई एम द लाइव एग्जांपल. मुझे भी चाहिए. मुझे हर दिन चाहिए. चलो ग्रेट. देखते हैं अब आपको क्यू में लगा देते हैं हम. यस सुनंदा, लेट्स स्टार्ट. Okay, great. So, but before I start reading, I want to tell something. Yeah, please share. In continuation with, I think Manvi was talking about Rakhi. तो मेरे बहुत सारे कजन ब्रदर्स हैं, बहुत सारे हैं, 15-20. तो मैं हमेशा उन लोगों को राखी भेजती हूँ with hardly any response. So this time I sent Rakhi only to my brother, मतलब my own brother, and I sent it to nobody else. और मुझे 1% भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है. Wow. I don't know if I did a wrong thing or a right thing, but मुझे 0.1% भी गिल्ट नहीं लग रहा है. मैम वो इसलिए शायद हमें ना हम एक शायद, अब पता नहीं, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो शायद वो कोशिश सिर्फ हमारी तरफ से ही थी कि हम वो अपनी तरफ से वो रिलेशन को बचाना चाह रहे थे और उस रिलेशन के साथ चलना चाह रहे थे. पर अगर दूसरी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं होते हैं ना, वो एक पॉइंट पे आके हमें पता चल जाता है कि वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं. This is called self love. This is only called self respect and self love. और उस चीज के लिए कोई हमें गिल्ट फील नहीं होता है ना, तो आई थिंक वो एक सही स्टेप ही होता है, वो गलत नहीं होता है. डॉक्टर जेपी, आप चुप बैठे हुए हैं. One more candidate is ready for magic book. Thank you. Anmol is ready. Yeah. Manvi is ready. You are ready. Tejaswini is ready. Yes. तो मैं वैसे ही ट्रेन कर ही रही हूँ. मतलब they all are ready for the magic book.
Whatever candidate you want, you can take it. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है. They are ready to go ahead with it, you know. Yeah, ma'am. Even I have started composing Telugu slides actually Very nice. for magic. Very nice. You can take support from me, not a problem. मैं just 10 मिनट लगाती हूँ और मैं पूरा PPT तैयार कर लेती हूँ. Yes, definitely. मतलब वो फॉन्ट जो रहता है ना, मैं प्लान कर रही हूँ कि वो भी तेलुगु में रहे. मतलब जब रीजनल प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी तेलुगु में आ जाए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. Similarly. सोने पे सुहागा है. ये तो डॉक्टर जेपी की इंस्पिरेशन है. डॉक्टर जेपी ने हाँ, that's for sure. में स्लाइड्स बना रही है. कमाल है. हद हो गई. वो भी कमाल. मैम मैं तो इतनी ग्रेटफुल हूँ ना, इतना ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि आप मानोगे, मैंने एक पोस्ट के बारे में आपको पहले बताया था. yesterday I again posted a topic or posted on topic और उस पे मुझे within few hours 100+ views मिले और कितने likes वगैरह, हार्ट वगैरह मिले. So you take charge. मेरे को आर्टिकल्स लिखने हैं. मैं तुमको बता देती हूँ. ये मेरा आर्टिकल लिख दे बच्चे तू और वो पोस्ट करा देती हूँ. मैं आर्टिकल्स के I have so much of knowledge, but वो काम इतने सारे आते जा रहे हैं. बस रोज मुझे कल ये पोस्ट करना है and I'm not able to do that. मैम I'm always there. आप जब बोलोगे. Here comes the queen of trade. I'm always there. Good morning. Ma'am. Happy Raksha Bandhan to all of you. Oh, Sujata, hi. Happy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan. Thank you, Sunanda, for sharing that. Wonderful. That's the self-love. That is your respect. Really? मुझे लगा ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए. Expectations from anybody. Just keep giving. That's it. No revert. कुछ नहीं चाहिए आपको किसी से भी. आपने अपना फर्ज निभाया, आपने दे दिया. जहाँ आपका मन नहीं करा, नहीं दिया. That's it. No guilt, nothing. Forgive everyone. That's it. बहुत simple philosophy life की. Sure, मोनिका. मुझे मतलब अच्छा ही लगा वो करके. मुझे गिल्ट नहीं लगा. हाँ, तो वो आपको सोचना भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए माइंड में आपके. ठीक है. Done. मैम पर लेकिन गिल्ट कब आता है? लाइक व्हाई विल सुनंदा मैम, मतलब मैं सुनंदा मैम से जानना चाहती हूँ, गिल्ट क्यों आ सकता है? नहीं आ रहा है ना. नहीं आ रहा है. Okay. नहीं आ रहा है. I'm like, मैम ने बोला गिल्ट नहीं आना चाहिए. I'm like, गिल्ट आ ही आ रहा है. मेरी मर्जी में जिसको भेजूं, मेरी मर्जी, मेरा मन जिसका जैसा करेगा मैं वैसे करूंगी. That's it. Nobody. मुझे लगा इस टाइम कि मुझे आर्टिफिशियल रिलेशनशिप नहीं चाहिए. हाँ. मेरी जिंदगी में काम नहीं आएंगे, मतलब नहीं. Okay. I'll read. Yeah, please. This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Says Thomas Carlyle. 7 years ago, when I discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in one day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home, where the airplane stopped en route to pick up passengers.
The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal dear to me. Crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. Wow. So I have shared this story. Wait. Just see, you know, why everybody was so, why she liked their presence was. हम अपनी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम अपनी लाइफ में अभी जो इतना टॉपिक चल रहा, इतना लंबा चल रहा था, उसके अंदर सिर्फ एक ही यही चीज है, when you're doing something, we expect people to respond, we expect people to answer back, we expect people to do the things, you know. जब आपने दिल से कुछ किया, उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, you should not be bothered about it, you know. आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, आपने यूनिवर्स को बोल के उसको छोड़ दो यूनिवर्स को. आपको अगर विश्वास है ना, वो आएगा, क्योंकि आपको शायद आ रहा है कि नहीं, भाई अभी नहीं आया, पता नहीं क्या, आपकी जो डाउटेड माइंड है ना, वो सब डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो उसमें अब वो ये क्या कह रहा है, व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी टू सी देम बिकॉज दे वर अलाइव. अलाइवनेस कैसे आती है? अलाइवनेस तब आती है, आप देखो जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा अलाइव रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने में मस्त है. अब उनकी टॉफी खुल रही है नहीं खुल रही, उसी में अपने में मस्त है, अपने में खुश है, अपने में नाच रहे हैं, अपने में गा रहे हैं. तो दे आर अलाइव, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ अलाइवनेस हमारे को होता है, ये मेरे लिए क्यों छोड़ दिया, मैंने इतना काम किया, उसको काम करना चाहिए था, मैं क्यों करूंगा काम, उसका काम है. मतलब हमारे पास बड़े होके हमारा ना दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाता है. जब ज्यादा चलना शुरू हो जाता है तो हम सोचते हैं कि यार मेरे से मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, उसको क्यों नहीं काम दिया, वो क्यों नहीं. मतलब वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन. सो उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम अलाइव नहीं रह सकते. इसीलिए जो आपके पास है, जैसा है, आप बी हैप्पी अबाउट इट and just be alive whatever you have. And then when you are grateful about those things, automatically the things will alter and will come in your lap. But grateful रहना चाहिए. अब ये जो लोग थे ताहिती, जितने भी लोग थे, why they were so alive, they were so happy, मस्त रहो बिंदास. अब कॉलेज के बच्चे देखो, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है, माँ बाप ने पैसे दे दिए, उनको उसकी भी परवाह नहीं होती है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं. ये मस्ती क्यों नहीं? जब हम कमाना शुरू कर देते ना, तो हम भाग रहे हैं, पानी, पैसा 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 पैसा. कॉलेज के बच्चों में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ स्कूल के बच्चों में होता है. वही ना मैं कह रही हूँ, भाग रहे देश में भाग रहे. अरे भाग किस चीज के लिए भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अभी भी जो है बहुत है, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? Enjoy every moment with your parents, enjoy every moment with your brothers, because we have lots of expectations from our mother. कि मेरी मदर ऐसे नहीं करती है, ऐसे क्यों बोलती है? अरे वही माँ है जिसने तेरे को पैदा किया, वही माँ है जिसने उठा के तेरे को चलना सिखाया, वही माँ है जिसने खिलाना सिखाया, वही माँ है, बचपन से देखते आ रहे हो, आज तुम्हें माँ अच्छी नहीं लग रही है. क्यों भाई? तुम्हारी माँ है, तुम्ही ने उसको स्मार्ट बनाना है, तुम्ही ने उसको आगे बढ़ाना है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू ट्रीट हर. अब वही बंदे बुरे लगने शुरू होते हैं, वही वाइफ जो क्या चांद का टुकड़ा लगती थी, और जो चांद तोड़ के लाने, तारे तोड़ के लाने, सबको तोड़ के ला सकते थे, वही इतनी बुरी लगने जा जाती है कि भैया मेरे से सिर्फ पिंडा छूटे. मतलब व्हाई? बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीपल. व्हाट अबाउट यू? व्हेन वी पॉइंट आउट टू अदर्स, यू नो, वो 3 फिंगर्स तो हम पे पॉइंट आउट करें कि हम क्या कर रहे हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर बिहेवियर rather than looking into the other person's behavior, you know. That is the most important thing. So let us go ahead. Okay. I have shared this story as an inspiration for you, because no matter how big your desires seem to be,
you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. Okay. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore my relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life. These All- statements can be used for our healthy, मतलब unlimited, ये जैसे कि इसने लिखा ना, ये statement हम अपनी prayers में लिख सकते हैं. We can have 100% healthy life and unlimited energy and excitement of life. My life should be this. अगर future के लिए हम prayer कर रहे हैं तो we can use these statements. Yes. Okay. Along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. Now, very, very important. Just ये वाली line. जब आप अपने लिए कोई बिजनेस या अपनी इंक्रीमेंट या किसी चीज के लिए कुछ भी डिजायर लिखोगे, प्लीज राइट इट डाउन. द डिजायर whatever I am desiring, it will bring joy to millions of people through my work. मतलब आप जो भी काम करोगे वो बाकियों को भी उसका बेनिफिट होगा. If you are creating that kind of work, please put it into your prayers. Yes. Yes, Sunanda. The rest of my desires magically followed. Yeah. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible. What means possible? Through the magical power of gratitude. Yeah, through the magical power of gratitude. Magic practice 22. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desires list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day.
Take out your list and read through it and feel as much gratitude as you can. 5th, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you for creating this for us. Thank you. Thank you. I would like Thank you, Monica. Thank you, G. Thank you. I would like to share this. Hello there and welcome. It's Bob Proctor. I'm going to take you back in time and space by using this flip chart here. I know we've got all kinds of technical razzle-dazzle today, but I want to communicate this idea to you. First, let me ask you a couple of questions. Have you ever wondered why you look like your relatives? Have you ever wondered why you have many of the habits or idiosyncrasies that mom and dad or grandma has? These are good questions. Have you ever wondered why you keep getting the same results over and over and over again? Have you ever asked yourself why individuals who have phenomenal education, they have degrees coming off the end of the business card, are not doing very well, while others who maybe never saw the inside of a school, earning millions of dollars and building giant organizations and doing all kinds of good all over the world? You ever asked yourself these questions? I did. In fact, I have spent the past 55 years asking nothing but those questions. You know something? Seeking no find is good advice. If you're looking for it, you're going to find it. I'm going to explain why all these things happen. I'm going to explain paradigms in such a way that a child could understand it, but I'm not going to insult your intelligence. Now let's think for a moment. Our mind controls everything. Dr. J.B. Wright said the mind is the greatest power in all of creation. Now, I have had people say to me, wait a minute, God is the greatest power. Wait a minute, God is the greatest power. The mind is the greatest power in all of creation. God being the creator, mind is the creation. Now, let this here represent your subconscious mind. And this represent your body. Do you know your subconscious mind is programmed with something called a paradigm? Do you know what a paradigm is? Paradigm is a multitude of habits. Now, a habit is nothing but an idea that is fixed here in the subconscious mind that you act on without any conscious thought. And it's our actions that produce our results. If we want to get really technical, it's the action causes a reaction, and the action-reaction alters the conditions, circumstance, and environment in our life. Now, we are programmed genetically. That's why we look like our relatives. But then after birth, we're programmed with our outside world. If you were born, let's say, in New Jersey, to an English-speaking Roman Catholic family, but you were taken to China and placed in the suburbs in a home that maybe knows nothing about English. They might be Buddhist, they might not have any religion. Do you know that you would grow up fluent in Chinese and have absolutely no knowledge of the English language? You see, whatever goes in from the outside world when we're children becomes programming. We're programmed genetically, and then we're programmed environmentally. Well, at a certain age, a psychic barrier comes up here, and we develop something that's called a conscious mind. And the conscious mind has hooked up to its sensory factors. You can see, hear, smell, taste, touch. And here we have higher faculties. We have something called intellectual factors. We have perception, intuition, the will, reason, imagination, all these marvelous tools here. Now, there's a power flows into our conscious mind, and we have the ability to think anything we want to think. Do you know what we're going to think? We're going to think thoughts that are in harmony with the paradigm. Because play with this. The paradigm controls the vibration
that your body is in. And make no mistake about it, your body is in a vibration. Vibration is the law of the universe. The law of vibration decrees, everything moves, nothing rests. This physical instrument we're living in is in a very high speed of vibration. If you looked at it through a microscope, you'd see it dancing right before your eyes. In fact, if you put your body in a completely dark room in front of an infrared television camera, you'd see yourself as a glistening, radiating, gleaming form. Semyon Kurlian, way back in 1934, the Russian photographer, he perfected a form of photography where you can photograph mass, the body, and you will see the ray of energy coming from the body. See, there's a power that flows into you, and it flows to and through you. And when it comes in, it has no form. Now, you can build negative ideas, or you can build positive ideas. We build ideas that are in harmony with the paradigm. You know why? If the paradigm is built with X-type energy, you're going to think X-type thoughts. If you have been raised with the paradigm where lack and limitation is common, it's just the way it is, you'll never become wealthy. If that is the thinking, oh, I know intellectually we know we can become wealthy, but the paradigm says no. You will probably take this power that flows into your conscious mind, that you could make anything out of it you want, and you'll make ideas that are in harmony with the paradigm, because it's the ideas that you impress upon the subconscious that controls the vibration. And if you start to impress why ideas, you're going to move into a very uncomfortable vibration. What would be a why idea? A why idea would be quit your job, sell your house, take the money, and invest it in a business so you can be your own boss. That's a why idea. That'll scare the daylights out of most people. Why? Because it's not in harmony with the paradigm. Now, your paradigm is controlling your results. You can have people that have all kinds of degrees here. Intellectually, they're brilliant, but the results don't match. You'll find other people, no formal education, no business experience, the results they're earning millions of dollars. Why? It's the paradigm. Now, what you want to do is learn how to change the paradigm, and we've got a program. It's a 13-month program, and it's directed at that. Changing the paradigm. And when you change the paradigm, you change your entire life. Think about that for a while. I know what I'm talking about. I've been studying this for 55 years. I've taught this to psychiatrists, psychologists, behavioral scientists all over the world. In fact, I've taught it in over 100 different countries. It's like magic every time. You know why? The whole universe operates by law, and so do we. It's about Proctor. Thank you. So now you get it, what is required for taking actions to get results. उन्होंने कहा 90 days. So 90 days work. 90 days तो उसका अपना प्रोग्राम है तो उसको प्रमोट कर रहा है, but the logic is that your subconscious mind creates your results. So अपने subconscious mind को प्रोग्राम करने के लिए आप बार-बार विजुअलाइज करते हो, आप बार-बार ये सारी चीजें करते हो, so that your subconscious mind, क्योंकि जो पैराडाइम है आपके पुश्ते, जो आपके दादा परदादा, उनका जो माइंडसेट है, जो जीन्स है वो लेके हम आए हैं, तो वो जीन्स हमारा पैराडाइम, हमारे हैबिट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमारे दिमाग में वही चल रहा है. तो उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग व्हिच इंपैक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड. और अपने सबकॉन्शियस माइंड को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ग्रैटिट्यूड है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग इज द मोर यू विजुअलाइज विद लॉट्स ऑफ कलर इफेक्ट्स, विजन बोर्ड बार बार आप याद दिलाओगे, रात को सोते टाइम मैजिक रॉक से करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड रेडी रहता है. देन यू आर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. सो दैट मीन्स you are time to time putting a pressure on your subconscious mind so that the paradigm is changed and you get the results. That is the main thing here. Okay, so let's get back to the sharing, reading. Great. So what did this chapter told us? That the secret and magical power of gratitude is very, very important. अपना dream list लो और पूरा दिन, अब तो आपके पास अपने मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अपने ड्रीम लिस्ट को इधर क्रिएट अ फोटोग्राफ, एक ना विजन बोर्ड करके नाम आता है, विजन बोर्ड करके ही है नाम, जो कि एक ऐप आता है जिसके अंदर आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो. तो वो देखो, अगर आप ऐप डाउनलोड करके आपके जितने आपके डिजायर्स हैं, यू कैन क्रिएट इट ओवर देयर. और
नहीं तो स्नैपशॉट्स खींच के रखो, उसका वीडियो बना लो एंड यू कैन गो एंड लुकिंग एट दैट वीडियो, यू नो। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, तो मेरी फ्रेंड क्या मेरी डिसाइपल थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने एक बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया था अपने लिए, उसमें एफर्मेशंस भी लिखी थी और वो वीडियो बनाया था। उसको बिल्कुल वही हस्बैंड मिला जो उसको चाहिए था। कभी मेरे को मौका मिला तो मैं इसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी आपके यहाँ पे सेशन में, बताएगी कि कैसे मोनिका मैम ने बताया था और मेरे को वही हस्बैंड मिला है, एंड शी इज वेरी हैप्पी टुडे। That's awesome. So that is how you have to create your dreams, and you have to make them true by, you know, by creating that paradigm, so that the results are the same that you really want to. Grateful to be alive. So जब तक alive नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है, आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, बट आपकी जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ एनर्जी मतलब हर टाइम मस्ती, खुशी, सेलिब्रेशन, क्योंकि ये जब इस हाई लेवल पे होती है आपकी एनर्जी, और ये तो आपका मैनिफेस्टेशन का चांसेस फास्टर हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी अलाइव, एनर्जेटिक, गाना गाते रहो, मस्ती करते रहो। जितना अलाइव रहोगे ना, उतने चीजें अट्रैक्ट करोगे। जितना मत हो जाएगा, ग्रैटिट्यूड तो मैं कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, करा तो है, ये तो हुआ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा, ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ, मैंने ग्रैटिट्यूड भी कर लिया, मैंने कंप्लीट भी कर लिया पेरेंट्स से। जब कर लिया तो इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों? यू हैव टू शो थ्रू योर गेस्चर, यस आई एम हैप्पी, एब्सोल्युटली फाइन, इट इज परफेक्ट। जब तक आप अपने मुंह से परफेक्ट, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, जब आपका ही मुंह से ठीक निकल रहा है तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है ना। यूनिवर्स कहेगा कि मैं तो इतना सब कुछ देने के बाद भी शी इज नॉट हैप्पी, तो ठीक है भैया, इसको ऐसी जिंदगी जीने दे दो। सो यू आर लिविंग इन अ सर्वाइवल मोड। If you are creating your own destiny, whatever universe is giving you, just say gratitude and just be energetic every time, all the time। मस्ती, हंसना खेलना, जो हंसी मजाक करो, लोगों के साथ खेलो, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर मासूम सा चेहरा बना के बैठ, again you are in that dimension, you know, where the vibrations are low, so you have to be। अभी उन्होंने यही बात करी कि आपकी डायमेंशन जो है वो कैसे रिजल्ट कैसे आते हैं, बिकॉज अगर स्टैंड किया था तो पूरी बॉडी वाइब्रेशंस दिखाते हैं। Dr. JP, you want to say something? No, nothing. Your hand कि मैंने सोचा शायद आपने कुछ याद कर लिया। नहीं। So gratitude will bring joy and happiness, joy to millions of people. Now, whenever you are writing any dream of yours, तो उसके अंदर लोगों को क्या बेनिफिट हो, आपका कुछ अर्निंग्स होगी तो लोगों को क्या बेनिफिट होगा। इफ यू add that thing also in your dreams, that is going to impact that you are going to bring joy to millions of people through your this task। how? So you just किस तरह से आपका प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए that it should give joy to millions of people। and keep your desire list in your mobile पे अपना लगा के, मे बी पेजेस सेव कर दो या जो भी कर दो, ताकि आप बार बार जितनी बार उसको देखोगे उतनी बार वो रिपीट होता चला जाएगा। so just repeat it many times in the day, so this is how to go about it, you know। so वीडियो आ गई फिर से, वेरी गुड, वेरी लकी, वीडियो आ गई, ये बहुत अच्छी वीडियो। ये सुजाता, ये तुम्हारी वीडियो है, मतलब your recommendation। Okay, which one? Only introduce this। How to use Nikola Tesla's 3-9 method to manifest anything you want. This is a very effective, can you share, Sujata, can you share about this 3-6-9 manifestation? हाँ, आप चला दो, फिर मैं शेयर करती हूँ वीडियो के बाद, ठीक है? Hi everyone, Robert Zink, Miracle Mentor and Alchemy Life Coach. And today we are soaring high. Like a big, beautiful eagle, we're always flying in the direction of your dreams and goals. We believe that you deserve the money you desire, the love you crave, and the health and happiness that you depend on. Nikola Tesla's 3-6-9 divine code method to manifest anything you desire
Okay, this really works, and I'm going to give you some variations. I'm not going to give you one. I'm going to give you the primary method, but I'm also going to give you some variations so that you can customize this method for you. If you'll use this method, you'll get what you want. High flyers, I've had people use this method to attract a specific person, to attract large sums of money and even win large sums of money, to attract a new house, a new car, a dream vacation, whatever it is you desire, or even own your own business and be successful at it. The 3-6-9 method of Nikola Tesla will help you manifest exactly what you desire. High flyers, Tesla was one of the great minds of our time. AC, or what they call alternating current, that was an invention of Nikola Tesla. We use it in your house right now. Go and you plug something in. That's Nikola Tesla. Okay, the Tesla coil, and over 100 patents. Here's the cool thing about it. Some of the stuff that was given up on years ago is now being revisited by modern scientists, and they're finding incredible results. I mean, Nikola Tesla was a genius. Nikola Tesla believed that 3, 6, and 9 were divine numbers. He said, if you only knew the magnificence of 3, 6, and 9, you have the key to the entire universe. You have the key to the entire universe. Here's a little key. Put it in the door. Turn it. Whatever you desire is on the other side of that door. I've used it. I've had clients use it. It's a powerful method. So stay with me on this because I'm going to give you some variations on it. So while the scientific method or explanation of this based on vortex mathematics can be rather complex, the numbers have an extraordinary, I mean extraordinary power if used correctly for manifestation. So high flyers, we all know that the universe, that the galaxies and the solar system express itself in a number of different patterns. We can see the patterns in nature, we can see the patterns in cells, and these patterns have oftentimes been referred to as the blueprint of God. And Tesla was very, very interested in these patterns. So what Tesla discovered is that 3, 6, and 9 is believed to be a vector from the 3rd dimension to the 4th dimension. This transference from the 3rd to the 4th dimension is called a flux field, not to be confused with the flux capacitor from Back to the Future. Now, 9 is called the mathematical symbol of enlightenment. And 9 has been used by mystics since as far back as we have record of. High flyers, ancient mystics would use the incantation, whatever incantation, what we would call an affirmation, they called an incantation. My definition of an incantation is a little bit different today, but they would recite an incantation 9 times for 9 days, and they would get incredible results. Hey, listen, I've used it. I know it works. Now, Catholics and early Christians perform a thing called the novena, and a novena is 9 days of specific prayers. So this number 9 goes back, as far as being mystical and powerful, goes back long before Nikola Tesla. So high flyers, let's get into the meat of how this works. You're going to speed up your manifestation. You're going to be literally shocked at how powerful this is. So take one intention. Now, this is very important because a lot of people say, well, the number is 3. Shouldn't I take 3 intentions? No, let's focus in. Let's zero in. Let's focus our power. One intention. And you're going to take that intention, you're going to write it down on a sheet of paper,
or in a notebook, and you're going to write it down 3 different ways. Let me give you an example. I am worthy of the love that I desire. That's one way. I'm enjoying a passionate, loving relationship with Rachel. That's 2. Love flows easily into our beautiful, loving relationship. That's 3. Okay, it's the same intention. The intention is a beautiful, loving relationship with Rachel. But I wrote it down 3 different ways. I'm going to give my subconscious mind 3 different choices. It's very important that you write it down 3 different ways. Now, are you ready, high flyers? Here's where it really gets good. And here's the part that's going to take a little bit of effort on your part. So I have 3 affirmations. 1 intention. 3 affirmations written down. I'm going to read and study those affirmations, those 3 affirmations, 6 times a day. You heard me. Not 5, not 7, 6 times a day. And more importantly, I'm going to study those affirmations at 3 o'clock in the afternoon, at 6 o'clock in the early evening, at 9 o'clock in the evening. Then I'm going to set my alarm for 3 a.m. and I'm going to study and recite those affirmations at 3 a.m., at 6 a.m., and again at 9 a.m. So I am focusing my time and my energy on those 3 affirmations, that 1 intention, 6 times each day at the specific hours outlined. I'll have it up in the description for you. High flyers, can you guess what the next step is? You're going to do this process for 9 days in a row. A novena. So, 1 intention, written down 3 ways, 6 times a day for 9 days. Now, high flyers, I've had people tell me, well, Robert, I can't do that. I got to get up at 3 o'clock in the morning. Yes, if it means something to you, whatever it is you desire to manifest, you'll put in the time, you'll put in the work, and you'll put in the effort. This really works. Okay, let me give you an example. So I want an increased amount of money to flow into my life. Here again, I'm writing it down 3 different ways. Money flows easily into my life. That's way number 1. Number 2, I'm enjoying and attracting large sums of money. And number 3, money comes quickly and without effort into my life. Now you write down your own. I'm just sharing with you some examples. So high flyers, this method can be used for almost anything. Now, by the way, if you'd like to claim your 30 minutes of miracle mentoring and alchemy life coaching, be sure and visit us at lawofattractionsolutions.com. Be sure and subscribe to our channel because Yes, this is one of the technique which is very, very beautiful. You want to share, Sujata? हाँ, नितेश सर को भी बोल दीजिए, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली यूज किया और मैंने भी किया है, काफी अच्छा रिजल्ट होता है। तो बेसिकली जैसे इन्होंने बताया ना 369, इन्होंने टाइम के हिसाब से बताया, तो जो मतलब हम लोगों ने उसको एनालाइज किया था वो ये था कि 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को और 9 रात को उसी एक चीज को, कोई भी एक चीज सेट कर लीजिए और उसका जो टाइम होगा, जैसे कि मतलब जैसे 17 सेकंड होता है ना, तो 17 सेकंड का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप 17 सेकंड के लिए कुछ सोचते हो तो उसका मतलब 4 टाइम्स लेके जो कि 1 मिनट 8 सेकंड आता है, तो उसके कॉम्बिनेशन को मतलब 1 मिनट 8 सेकंड का टाइमर लगा के 3 बार उसको विजुलाइज करो, मॉर्निंग में, 6 बार दोपहर को और
हाँ 9 बार रात को सोने से पहले, तो उसको टाइम अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जब हम उसको करते हैं तो वो एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर एकदम फील हो जाता है वो ऐसा। एक दिन के लिए भी हम अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे वो रियली में हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो गया है। बिकॉज 3+6+9 यानी कि 18 बार हमने दिन में कर लिया है एक मिनट के लिए, जो कि बहुत है। टेस्ला के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो टेस्ला जो था जब अपने ऑफिस जाता था, टेस्ला को ना सब पागल कहते थे। जब टेस्ला जो था ये सब पागल कहते थे, बिकॉज ही वाज कंप्लीटली इनटू न्यूमरोलॉजी, नंबर्स पे गेम खेलता था वो। अपने घर से जब ऑफिस आता था, ऑफिस के बाहर पहले 18 चक्कर लगाता था वो। यस यस 18 चक्कर लगा के एंड देन ही यूज्ड टू कम इनटू द ऑफिस, एंड वो भी स्पेसिफिक, जो कि मल्टीप्लाई हो 3 से टाइम पे या 6 के टाइम पे कुछ मल्टीप्लिकेशन उसकी चलती थी कि उसी टाइम पे, अच्छा कुछ लॉन्च करना है तो वो उसी टाइम पे करना था। तो देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये चीज मैंने भी यूज किया है। मेरा जो से मैं प्राइस टैग लगाती हूँ तो मैं उसको 3 से डिवाइड करके लगाती हूँ कि इस तरह से वो 3 से डिवाइड हो। उस तरह से मैंने आपको भी सेट करवाया था वो 3 से डिवाइड होता है वो नंबर। और दूसरा ना जो इसका जो एक्चुअली ना, जब मैंने इसका पूरा वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे ना, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, टेस्ला के बहुत सारे वीडियोस हैं। हाँ, तो उसमें जो ये 369 का जो वर्टेक्स है इस वीडियो में नहीं बताया गया है, उसको जब कैलकुलेशन देखा तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि ये तो कमाल की चीज है। तभी तो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 सब कुछ 99999, तभी तो है। दैट इज आल्सो स्पिरिचुअल, हर चीज 9 है। वो उसका एक और चीज था, पृथ्वी का पता नहीं क्या वो कुछ था, और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया पूरा का पूरा। और उसको 369 को जो हम करते हैं उसको मैं भेज दूंगी वीडियो, आप देख लेना। नितेश सर ग्रुप पे भेज देना। आप भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्होंने विजुअलाइजेशन किया तो मैंने भी इसको किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उस वक्त इंस्टेंटली ना। मैं बाद में बताऊंगी रिजल्ट, मतलब उससे अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो मैम मेरा ऐसा था, हाँ जी सर बताइए। मैम मेरा ऐसा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग कभी किया नहीं था, एंड बॉडी बिल्डिंग इस बच्चों बोलता ना 23 साल के बच्चों का गेम होता है। तो आई वाज 45। तो जब मैंने पहला पार्टिसिपेट किया ना तो मेरे को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों से, तो मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। तो फिर मैं स्टार्ट किया लिखने का रोज 3-6-9 बार कि मैं बॉडी इज गुड गुड करके। अच्छा। तो यू वोंट बिलीव तो my body changed so much कि I won Thana, then I won Maharashtra, then I went to win India also. At age 45, I won Mr. India also with that 369. Wow, very nice. So body changed with 3 or 4 months. Body completely changed with that. Wow. So this you practiced for 3-4 months? No, for 3 months. 3 months. Okay. मैंने किया था ये. Very nice. Very very nice. Good good. So this works. In any case, this works. 369 बहुत अच्छा काम करता है, and that is why I have given you the technique. आप गूगल में सॉरी यूट्यूब में जाके और भी देख सकते हैं। हाँ, मतलब जिसको भी देखना है ना, तो उसमें आप अगर डीप में जाना चाहते हो, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। खुद आपको जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकता है। बहुत ही अमेजिंग, मतलब मैं सरप्राइज हो गई थी जब मैंने देखा उसका नंबर्स का मैजिक, कमाल का। वो मेरे को पता है, एक एक्सप्लेनेशन की पूरी वीडियो थी, मुझे पता है वो 17 मिनट्स की थी। yes, उसके बाद भी और भी बहुत सारे वीडियो हैं। So now activity for you, choose 2 dreams. 2 ड्रीम चूज करो और उसको विजुअलाइज करो कि वो एक्चुअल में हो रहे हैं। Just do that. And how you have to say thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to the God and the universe that this has happened, and वो सीन क्रिएट हो जाए आपकी आंखों के सामने। Just 2 का कर लीजिए अभी। When you do it, just put done over there.
जस्ट 1 मिनट का है. Done. Thank you. So thank you for everything, and thank you. I'm so blessed and grateful to the universe that you all members of Magic Group are sharing the channel link for the subscription, liking all videos and sharing with experience in the channel. Please share करो अपना experience channel के अंदर. Subscription नहीं बढ़े अभी तक, सिर्फ 68 है. 68 से बढ़ा ही नहीं है, 3 दिन हो गए हैं. So please share with your family members and friend circle, and please share the videos. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Didi. Thank you. And कल का होमवर्क सुन लो. विजुलाइज करने हैं आपने 10 डिजायर्स जो आपने लिखे थे, और 1-1 मिनट के लिए. That is what you have to do at least 2 times a day. That is the homework. Okay. Thank you so much. Love you all. Enjoy your time. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. Thank you.